जरमिया चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से और फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा, आपके बिना वचनों को हम नहीं समझ सकते, हमारी मदद कर और इन वचनों के आधार से हमारा जीवन बदल जाए और ये हमारे लिए परमेश्वर जो चाहता है उस रास्ते को हम पकड़ पाए। अनुग्रह कर, हमारी समझ खोल और हमें परमेश्वर चाहता है उस रचना में आने दे। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Jeremiah chapter 1 Introduction, the calling of Jeremiah. His visions denoting God's speedy judgments. God promises him his assistance. First verse, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. And the word of the Lord came unto me the second time, saying, What seest thou? And I said, I see a seething pot, and the face thereof is toward the north. Then the Lord said unto me, Out of the north an evil shall break forth upon all the inhabitants of the land. For lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, saith the Lord, and they shall come, and they shall set every one his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah. And I will utter my judgments against them, touching all their wickedness, who have forsaken me, and have burned incense unto other gods, and worshipped the works of their own hands. Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. For behold, I have made thee this day a defenced city, and an iron pillar and brazen walls against the whole land, against the kings of Judah, against the princes thereof,
against the priests thereof, and against the people of the land, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Chapter 2. God's expostulation with the Jews. The vain confidences of Judah rejected. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे हम. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine espousals, when thou wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown. Israel was a holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him shall offend. Evil shall come upon them, saith the Lord. Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel. Thus saith the Lord, What iniquity have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and are become vain? Neither said they, Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, that led us through the wilderness, through a land of deserts and of pits, through a land of drought and of the shadow of death, through a land that no man passed through, and where no man dwelt? And I brought you into a plentiful country, to eat the fruit thereof and the goodness thereof. But when ye entered, ye defiled my land, and made mine heritage an abomination. The priests said not, Where is the Lord? And they that handle the law knew me not. The pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit. Wherefore I will yet plead with you, saith the Lord, and with your children's children will I plead. For pass over the isles of Chittim, and see, and send unto Kedar, and consider diligently, and see if there be such a thing. Hath a nation changed their gods, which are yet no gods? But my people have changed their glory for that which doeth not profit. Be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid. Be ye very desolate, saith the Lord, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Is Israel a servant? Is he a home-born slave? Why is he spoiled? The young lions roared upon him and yelled, and they made his land waste. His cities are burned without inhabitant. Also the children of Noph and Tahpanhes have broken the crown of thy head. Hast thou not procured this unto thyself, in that thou hast forsaken the Lord thy God when he led thee by the way? And now, what hast thou to do in the way of Egypt, to drink the waters of Sihor? Or what hast thou to do in the way of Assyria, to drink the waters of the river? Thine own wickedness shall correct thee, and thy backslidings shall reprove thee. Know therefore, and see that it is an evil thing, and bitter, that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God of hosts. For of old time
I have broken thy yoke and burst thy hands and burst thy bands, and thou sayest, I will not transgress, when upon every high hill and under every green tree thou wanderest playing the harlot. देखिए यहाँ पे एक बात है कि उसने जुआ तोड़ा और उसने बंधन को धमाके से तोड़ते हैं ना, वैसा उसने स्फोट कर दिया। ओके, बंधनों का टूटना और जुआ टूटना, ये दो चीज़ें हैं इंसान के लिए परमेश्वर ने किया। तो हमको भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमने इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जुआ टूटने का, दुष्टता के जुआ टूटे और जो भी बंधन बांधे हुए हैं वो बस्ट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। When upon every high hill and under every green tree thou wanderest playing the harlot, yet I had planted thee a noble vine, wholly a right seed. How then art thou turned into the degenerate plant of the strange vine unto me? For though thou wash thee with night air, and take thee much soap, yet thine iniquity is marked before me, saith the Lord God. How canst thou say, I am not polluted? I have not gone after Baliam thy way in the valley. Know what thou hast done. Thou art a swift dromedary traversing her ways, a wild ass used to the wilderness, that snuffeth up the wind at her pleasure in her occasion. Who can turn her away? All they that seek her will not weary themselves. In her mouth they shall find her. In her month they shall find her. Withhold thy foot from being unshod, and thy throat from thirst. But thou sayest, there is no hope, nor for I have loved strangers, and after them will I go. As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed. They, their kings, their princes, and their priests, and their prophets, saying to a stock, Thou art my father, and to a stone, Thou hast brought me forth. For they have turned their back unto me, and not their face. But in the time of their trouble they will say, Arise and save us. But where are thy gods that thou hast made thee? Let them arise, if they can save thee in the time of thy trouble. For according to the number of thy cities are thy gods, O Judah. Wherefore will ye plead with me? Ye all have transgressed against me, saith the Lord. In vain have I smitten your children. They received no correction. Your own sword hath devoured your prophets like a destroying lion. O generation, see ye the word of the Lord. Have I been a wilderness unto Israel, a land of darkness? Wherefore say my people, We are lords, we will come no more unto thee. Can a maid forget her ornaments, or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. Why trimmest thou thy way to seek love? Therefore hast thou also taught the wicked ones thy ways. Also in thy skirts is found the blood of the souls of the poor innocents. I have not found it by secret search, but upon all these. Yet thou sayest, Because I am innocent, surely his anger shall turn from me. Behold, I will plead with thee, because thou sayest, I have not sinned. Why gaddest thou about so much to change thy way? Thou also shalt be ashamed of Egypt, as thou wast ashamed of Assyria. Yea, thou shalt go forth from him, and thine hands upon thine head. For the Lord hath rejected thy confidences, and thou shalt not prosper in them.
यिर्मयाह 2 अध्याय हम पढ़ेंगे पहले वचन से। 1 और 2 अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय। यिर्मयाह पहला और दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यिर्मयाह पहले वचन से। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा। जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए यिर्मयाह को बुलाया जाना। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तो कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मुँह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुँह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। जो दर्शन यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनके सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तो अपनी कमर कसकर उठ, हालेलुया, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहे। तो उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हकीमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल के शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हम वॉरफेयर प्रेयर्स करते हैं ना, जो दुष्ट आत्माओं के काम खत्म होने के लिए जो हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द हमको परमेश्वर देता है हमारे मुंह में। ओके, हम उन शब्दों को लेकर
शत्रुओं के शक्तियों को, मतलब जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, उखाड़ते जाते हैं। ओके, तो ये करना हमारे लिए परमेश्वर कहता है कि तू उनसे डरना नहीं, तूने उसको करना है। ओके, वो काम करना है, तूने उनको हटाना है। कमर कस ले अपनी, मतलब क्या है, फाइट होने वाली है। ठीक है, दुष्ट आत्माएं हमारा विरोध करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए फाइट होने वाली है। तो अपनी कमर कस ले। ओके, तो कस ले मतलब जिद्दी बन जा, तो उसे हटाना ही हटाना है। ऐसे जिद्दी बन जा, ढीले मत रहे और उनको ऐसे ही रहने मत दे। ठीक है, और परमेश्वर कहता है वो फाइट करेंगे, वो अपनी ताकतों को इतना ऊंचा दिखाएंगे कि तुझे डर भी लगेगा कभी। लेकिन परमेश्वर कहता है तू डरना नहीं है। ओके, अगर तू डरेगा तो फिर तेरे को मेरी ओर से भी डर लगने लगेगा कि काम करे या नहीं करे। ओके, तो इसके लिए तो डरना ही नहीं है, डरने की नाम ही नहीं लेनी है। और परमेश्वर कहता है वो लड़ेंगे, वो फाइट करेंगे, उनके पावर्स दिखाएंगे, लेकिन लास्ट एंड रिजल्ट जो है तो जीत के आएगा। हालेलुया। तो इसके लिए हम उस समय तक सब्र करना है, जीत हमारी ही है। ये अंत हम प्राप्त ना कर ले तब तक हमने फाइट करना है। हालेलुया। हमको लगता है ये रास्ता कठिन है, अब नहीं, अब खत्म, अब नहीं कुछ कर सकते। आप वैसा मत करो। इसके लिए परमेश्वर कहता है कमर कस लो, कमर कस लो, यानी आप जिद्दी बन जाओ, आप वचन को थाम के रखो, पकड़ के रखो। दी एंड रिजल्ट जो है वो परमेश्वर आपको जिताने के लिए है। जब तक वो जीत आपके हाथ नहीं आ जाती तब तक उनके खत्म करते रहो, सारे कामों को, शक्तियों को तोड़ते रहो, खत्म करते रहो, तोड़ते रहो, खत्म करते रहो, तोड़ते रहो, खत्म करते रहो। जब तक वो जीत आपके अंदर हासिल ना हो जाए आप शांत नहीं रहना है। आमीन। परमेश्वर द्वारा इस्राएल की देखभाल। 2 वचन से आगे, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। आपको पता है मैं वॉरफेयर प्रेयर्स में और इवेंजलिज्म के उस यूट्यूब चैनल्स में, चराई के चैनल में तो ऑलरेडी चल रहा है, रैप्सोडी ऑफ रियलिटी से आपको कनेक्ट रहना है। ओके, तो ये सब बाकी चैनल्स में मैं क्यों ज़्यादा अपलोड नहीं कर रही हूँ, जब तक आपको मैं ऐसे वचन पढ़ते समय ध्यान ना ला कर दूँ कि ये है वचन जिसके कारण हम वो चैनल के अंदर काम करने जा रहे हैं, तब तक आपका फाउंडेशन नहीं बनेगा और आप उन प्रेयर्स का मसाला क्या है, ओके, आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, आपको लगेगा ये सिर्फ बातें हैं और सिर्फ बोलने के लिए है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये तरीका है जो परमेश्वर वचन में से देता है, और उस वचन के तरीकों में हम जब चल रहे हैं तो निश्चित जय हमारी है। निश्चित है, निश्चित निश्चित निश्चित। हालेलुया। तो इसके लिए मैं बहुत फास्ट स्पीड में उसके कुछ अपलोड्स नहीं लाती हूँ, लेकिन जब लाना शुरू कर दूँगी तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, 17 वचन, कमर कस के उठना है उस समय। ओके, जब कमर कस के हम शुरू हो जाएंगे तो रुकने का नाम नहीं लेंगे फिर। ओके, परमेश्वर द्वारा इसराइल के देखभाल। 2 अध्याय के पहले वचन से, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसके पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल का पाप। 4 वचन से आगे, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझे से दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता।
हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है? और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। हालेलुया। तो हमने जो प्रभु में आ जाते हैं तो हमको परमेश्वर ने लाया है, लेकिन परमेश्वर ने हमको अपनी जिम्मेदारी के साथ रहने के लिए कहा है। हमने अशुद्ध नहीं होना है, हमने घृणित काम नहीं करना है। ओके, तो परमेश्वर लगाता है पौधा, लेकिन पौधा सही ढंग से फल नहीं लाया तो उसको काट देने का अधिकार भी परमेश्वर के पास है। ओके, तो हमारे अशुद्ध काम, घृणित काम मसीह में होते हुए करते जाना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आगे पढ़ेंगे। और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। अपने लोगों के विरुद्ध परमेश्वर का मुकदमा। 9 वचन से आगे। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हालेलुया। तो हमारे ऊपर परमेश्वर की महिमा है। अगर हम अशुद्ध काम करेंगे, घृणित काम करेंगे, वचन के बाहर का जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर के महिमा को हम निकम्मी वस्तु में बदल रहे हैं। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। हालेलुया। और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखिए, ये कलसिया के बारे में दर्शाता है। ओके, हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उनकी शहरपनाह टूटी हुई है और उसके अंदर पवित्र आत्मा रुकता नहीं है। ओके, पवित्र आत्मा उनके अंदर रुकने की ज़रूरत है, यानी उनके शरीर में रुकने की ज़रूरत है। अब पवित्र आत्मा है उनके अंदर, आत्मा के अंदर है, उनके आत्मा के अंदर, लेकिन उनका प्राण सूखा पड़ा है, उनका शरीर सूखा पड़ा है। शरीर का अवस्थाएं, प्राण का अवस्थाएं देखेंगे तो कोई बोलेगा नहीं उनको वो मसीह है। ओके, लेकिन उनके आत्मा में पवित्र आत्मा मौजूद है। ओके, तो इस प्रकार का जीवन बन जाता है जब हम ऐसा कुछ कर लेते हैं अपने खुद की इच्छा के अनुसार। ओके, अपनी मर्जी को हम पूरी करने के लिए चले जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? जो परमेश्वर ने हमारे अंदर शुरुआत किया है, हम उसको बाजू में कर रहे थे और हम अपनी मर्जी के जो बातें हैं उसको हम अपने लिए इकट्ठा कर लेते। तो उसके अंदर अब क्या हो जाता है? हमारा प्राण और हमारा शरीर पवित्र आत्मा के बिना वहाँ रहने लगता है। ओके, पवित्र आत्मा के बिना अगर वो रहने लगा तो अब क्या हो जाएगा? वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति रहती है प्राण के अंदर और शरीर के अंदर, तो चमत्कार होते हैं, बदलाव आता है, असर आता है, चीज़ें बदलने लगती है, समय बदलने लगता है। हमारे लाइफ के हर एक जो परमेश्वर चाहता है वो उभर कर, निखर कर, फलदायी होकर, निखर कर आने लगता है। सब कुछ जो परमेश्वर उस परिस्थिति में हमारे साथ रखा है, सब कुछ के अंदर प्रभाव दिखने लगता है। तो इसका मतलब क्या? हमारे प्राण में परमेश्वर भरा हुआ है और हमारा शरीर भी परमेश्वर से भरा हुआ रहना चाहिए। ये जगह है जिसके कारण परमेश्वर के काम कुछ कलीसिया में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जो कलीसिया के अगुवे होते हैं वो आत्मा में तो भरे हैं, लेकिन प्राण और शरीर में अपने अपने सेल्फिश गोल्स को बना के रखे हैं।
ओके, स्वार्थ की कोई कोई कप्पे बना के रखे, कोई कोई छोटे छोटे ऐसे मसले रखे हैं कि वो स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ओके, तो परमेश्वर कहता है वो एक घटी है तुम्हारे अंदर जिसके कारण मैं तुम्हारे प्राण में रुक नहीं सकता है, वो एक तुम्हारा फंडा है जिसके कारण मैं तुम्हारे शरीर में रुक नहीं सकता है। ओके, तो मसीह के अंदर पवित्र आत्मा मौजूद है, लेकिन बहता क्यों नहीं है प्राण और शरीर में? क्योंकि हमारे प्राण का एक इरादा जो पवित्र आत्मा के विरोध है, हमारे शरीर का एक इरादा जो पवित्र आत्मा के पसंद के नहीं है। ये दो रीज़न है। ओके, तभी जाके हम बोलते हैं कि हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा है, हमको अटैक्स आ रहे, हम सहन नहीं कर पा रहे, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हम ये सब बहानेबाजी सब बोलने लगते हैं। ये क्या हो जाता है? आपका प्राण पवित्र आत्मा से नहीं भर रहा है, आपका शरीर पवित्र आत्मा से नहीं भर रहा है। तो कैसे भरते हैं पवित्र आत्मा से? वो आप फिलिपियों के पत्र में पढ़ चुके हैं। गीत गा के, प्रार्थना करके, अन्य भाषा बोल के, वचन पढ़ के आप पवित्र आत्मा से भरने का रास्ता है ये। ओके, आगे पढ़ेंगे। इस्राएल के अविश्वास का परिणाम। क्या इस्राएल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों शिकार बना? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया। उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया। उन्होंने उसके नगरों को ऐसा उजाड़ दिया कि उनमें कोई बसने वाला ही न रहा। नोप और तहपन्हेस के निवासी भी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए, अथवा अश्शूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल पिए? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो ये पूरा आप पढ़ेंगे वचन के अंदर से 14 वचन से लेकर 19 वचन तक। आपको पवित्र आत्मा आपके प्राण में चाहिए और आपके शरीर में भी चाहिए। ये अवस्थाएं आपको बताता है। ठीक है, आप ड्रग्स एडिक्ट से, आप अल्कोहल एडिक्ट से, आप कोई प्रकार के गंदे कामों के एडिक्शन में है, कोई भी चीज़ों में है, आप जो परमेश्वर के वचन के बाहर है, लेकिन आप मसीह है, आप अन्य जातियों के बीच में आप उनके विश्वास के अनुसार भी भक्ति में चलते हैं, तो फिर आपके लिए ये वचन है कि आपका प्राण पवित्र आत्मा से आप नहीं भर रहे। ओके, आपका शरीर पवित्र आत्मा से नहीं भर रहा है। बस ये दो कारण है कि आप अभी तक पूर्ण रूप से परमेश्वर के आत्मा से नहीं भर रहे हैं। यही कारण है कि आपसे गलतियां हो रही है। बहुत आसान है जवाब। ओके, तो मेहनत लेना है आपको, आपका प्राण भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करना है। हम कभी सुना है ऐसा, पवित्र आत्मा ऐसे हम बोलते हैं। ओके, कम लॉर्ड जीसस, कम हमारे अंदर आ जा, ऐसे हम बोलते। तो एक्चुअली पवित्र आत्मा को हम हमारे प्राण में इनवाइट कर रहे होते हैं। ओके, पवित्र आत्मा को हमारे शरीरों में हम इनवाइट कर रहे होते हैं। ओके, ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के अंदर मौजूद है, लेकिन सिर्फ आत्मा में रह के फ़ायदा नहीं है, उसको हमारे प्राण में आने की ज़रूरत है। और फिर हमारे डिसीशंस बदलेंगे, और फिर हमारे चाल चलन बदलेंगे, स्वभाव बदलेंगे, हमारे हर एक उठने बैठने के तरीके बनेंगे। ओके, बदलेंगे। और शरीर में भी उसको आना ज़रूरत है, क्योंकि शरीर के अंदर की ताकत वो बन जाएगा। ओके, शरीर के अंदर का वो क्रियाशील हो जाएगा जो भी दर्शन शरीर के लिए उसने रखा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हम इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा को आने के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से यहाँ कहीं से हम उसको आने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उसको बोल रहे हैं हमारे प्राण में आ जा, हमारे शरीर में आ जा, और उस समय वो हमारे आत्मा के अंदर से निकलकर हमारे प्राण में फ्लो होता है और प्राण से हमारे शरीर में भी
फ्लो होता है। लेकिन उसकी फ्लो होने के बारे में विशेषता क्या दिखाया है यहाँ पर 13 वचन में विशेषता दिखाया है, हम वैसे सेल्फिश गोल्स रखे हुए रहते हैं जो उस पवित्र आत्मा का बहाव को पकड़ के नहीं रख पाता है। कुछ समय के लिए वो प्राण में रहता है, कुछ समय के लिए वो शरीर में रहता है, फिर बाद में देखेंगे दोबारा गंदे कामों में चले जाते हैं। ओके, नहीं, वो रुकना चाहिए ना, तो हमने अपने स्वार्थ को छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, यानी हमारे स्वार्थ को हमने अपना लिया है। ओके, और क्या लिखा है, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन यानी उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए आप सिर्फ मायने रखते हैं कि आपका पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर सहायता करे, ठीक है, बाकी नौकरी में वगैरह मैं खुद चुनाव करूँगा। तो कुछ चीज़ों में आपने पवित्र आत्मा को बॉक्स बना के रख दिया और बाकी चीज़ें आप खुद अपने मनमानी से अपने शर्तों पर चलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर का वायदा नहीं रखना है। परमेश्वर का वायदा है भरपूरी से बहने दो पवित्र आत्मा को, आपके प्राण के हर हिस्से वो अपने कब्जे में लेकर, कंट्रोल में लेकर उसकी मर्जी के अनुसार वो चलाने दीजिए। वो उसकी मदद है, वो उसकी सहायता है हमारे लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ एरिया सेपरेट रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। हम बोलते हैं पवित्र आत्मा ये वाला एरिया है, इसको तो छूना नहीं, इसमें मेरी मर्जी चलने दे। तो परमेश्वर का आत्मा वचन कहता है उसमें रह नहीं पाता है फिर वो। ओके, जो छोटा छोटा जगह है उसके ही अंदर वो रह नहीं पाता है, वो उसको चाहिए कंप्लीट कंट्रोल। आमीन। हमारे सारे स्वार्थ निकाल देना है और उसको कहना है चलो आप जो बोले वही हो, जो आप ना बोले हम ना बोलेंगे, जो आप हाँ बोलेंगे हम हाँ बोलेंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार का उसको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। जो हमने पकड़ के रखी हुई जगह रहती है तब वो ऐसा हो जाता है कि हम उतना परमेश्वर को आनंद में उठा नहीं पाते हैं। और देखिए, परमेश्वर की आराधना करने से इस्राएल का इनकार 20 वचन से आगे, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए। ये है वॉरफेयर। ओके, हमारे प्रार्थना करने से परमेश्वर कुछ करता है, और वो क्या है, जो शैतान ने हमारे ऊपर जुआ डाला है वो तोड़ता है। ओके, और जो बंधन हम पे बांधे हैं वो बंधन खोल दिए जाते हैं। आमीन। परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तो व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू कैसे कह सकती है मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तराई में की अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है, जंगल में पली हुई जंगली गदहों जो गदही जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है। तब कौन उसे वश में कर सकता है? जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम न करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। अपने पाँव नंगे और गला सुखाए न रहे। परंतु तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। ये हमारे सेल्फिश गोल्स के बारे में है। 25 वचन। ओके, इस्राएल दंड के योग्य है। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इस्राएल का घराना राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। हालेलुया। तो हम कभी भी ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे कोई समय से जाते हैं जिसमें आपका शर्म हो जाता है, यानी आपका परमेश्वर के संगति का अनुभव नहीं दिखाई देता है। ओके, तो वो समय रहता है कि आपने पश्चाताप करना है, आपने प्रभु से मांगना है, प्रभु
अगर कोई ऐसी चाल मेरी तुझे मिल गई है जो तुझे खेदित कर चुकी है, दुखी कर चुकी है, तो मुझे माफ़ कर और अब मुझे सीधे रास्ते दे दे। बहुत आसान रास्ता है, फिर परमेश्वर का आत्मा आसान करके देता है और हमें दोबारा वो हरियाली सा बना देता है, ओके, हरे भरे बना देता है। वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही की फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठ, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से हैं। हालेलुया। देखिए, जब कुछ भी दुष्ट आत्मा के काम करने वाले लोगों को आता है तो उनको लगता है मुझे भी कुछ करने के लिए आता है, ओके, लेकिन मेरे पास हाजिरा के समान है मेरा, ओके। मैं मरते हुए बच्चे को बाजू में रख देती हूँ, मुझे पता है मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, ओके। मेरे पास इसका कोई भी ऐसा कोई कुछ बात नहीं है मेरे पास कि मैं इसे कुछ बदल पाऊँ, ओके। और बस अब कुछ पल में ये मर जाएगा और हाजिरा रो रही है ना। तो इस प्रकार से मेरा जीवन रहता है। मैं जानती हूँ कि मैं ये परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता है इसके बारे में क्या करना है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि वो इसी प्रकार पड़ा रहेगा, ओके। और मैं परमेश्वर की ओर अपना मन लगाती हूँ कि अब मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन मुझे इतना ही पता है ये सिचुएशन मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ, ओके। और वो समय रहता है कि हमारा परमेश्वर का संबंध में जो बातें हो रही होती है वहाँ से हमारी हेल्प आती है, ओके। लेकिन दुष्टता के जगत के लोगों के पास तरीके होते हैं, ओके। उनके पास चालाकियाँ होती है, उनके पास चतुराइयाँ होती है, वो वैसे चालाकियाँ चतुराइयों को इस्तेमाल करते हैं और उनको लगता है हम भी वैसे ही कुछ तो कर रहे होंगे घर में। कुछ नहीं है, मसीहों के पास सिर्फ एक परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है, वो सीधे साधे रास्ते हैं हमारे, ओके। तो वैसा हमारा जीवन सीधाई में दोबारा परमेश्वर लेकर आता है, ओके। हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही कुछ रखने के लिए, ना छुपाने के लिए, ना दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो हम लोग सब जगह में, कुछ नहीं है हमारे पास, ओके। हमारे पास जो है वो हमारे अंदर यीशु मसीह है, दैट्स ऑल, ओके। हमारा सारा मसाला जो भी है वो यीशु मसीह है, ओके। हमारा जो भी शक्तियों के कामकाज है सब कुछ यीशु मसीह है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पैरों में कुछ नहीं है, हमारे मुंह में कुछ नहीं है, हमारे सिर में कुछ नहीं है, बालों में कुछ नहीं है, बदन पे कुछ नहीं है, हमारे कोई भी जगह में कोई भी प्रकार की चीज़ें नहीं है। हमारे पास अगर कुछ है वो यीशु मसीह है, दैट्स ऑल, ओके। मैंने ब्रेसलेट्स पहन के रखा है, ANM मिनिस्ट्रीज में से मैंने मंगाए थे गिफ्ट देने के लिए। कुछ ब्रेसलेट्स रह गए मेरे हाथ में, मेरे पास रह गए, तो मैंने उसको दोनों अपने हाथों में रख लिए है। तो लोगों को लगता है वो तावीज़े है, तावीज़े नहीं है, उसके ऊपर वचन लिखा हुआ है, दैट्स ऑल, ओके। तो इस प्रकार से हम वचन को, यहोशुआ को कहा है कि अपने माथे के ऊपर वचनों को लिख के रख, अपने आंखों की पलक से वो वचन छुपने मत दे, ओके। इस प्रकार से वचनों को हम अपने साथ में रखें, वचन को लिखा हुआ है हमने अपने पास रखा है ताकि हमको बारंबार याद रहे कि ये वचन मेरे जीवन में है, दैट्स ऑल, ओके। और बारंबार वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, परमेश्वर से संगति में रहते, इसके अलावा कुछ भी हथियार हम लोग यूज़ नहीं करते, ना ही कहीं कुछ छिपा के रखते ज़मीन के नीचे, बेड के नीचे या चेयर्स में, कहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कंप्लीटली हम लोग प्लेन जीवन जीते हैं, जो कुछ भी है वो हमारे अंदर, हमारे आत्मा में है और वो है यीशु मसीह, दैट्स ऑल, हालेलुया। अब हाँ, हम पढ़ेंगे 29 वचन। तुम क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है, यहोवा की यही वाणी है। मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों को ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह फाड़ता है। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है हम तो आज़ाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर न आएंगे।
क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। मेरे तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का, देखिए कैसा लिखा है यहाँ, प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। हाँ, कभी भी देखो ना, उनको कभी फील नहीं होता है ऐसा कि वो गलत कर रही है। ओके, उनको महसूस नहीं होता है कि ये गंदे काम है, ये काम नहीं करना चाहिए। उनको लगता है हम शादीशुदा औरतें हैं और हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हम बहुत ही क्या कहते हैं ना उसको, आदर के योग्य है। और बाकी जो स्त्रियां या कोई किसी के बेटियां हैं तो वो अगर मैरिड नहीं है और कहीं पर उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है तो वो बिल्कुल तुच्छ लोग हैं, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो उनको बिल्कुल भी आदर नहीं रहता है उन स्त्रियों का जो सच में प्रभु के अंदर भय के साथ जी रहे। उनको सिर्फ इतना मालूम रहता है कि वो लोग जो है वो लोग कर रहे हैं, जो वो लोग जिस तरह से अपने घर में बच्चों के साथ पति के साथ है, वो एकदम कॉलर टाइट है उनका, ऐसे उनको लगता है। लेकिन परमेश्वर उनकी पहचान क्या देता है? वो ये स्त्री है, ऐसे स्त्री है उनके घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों का लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? जैसे अश्शूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगा। वहां से भी तो सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है। हालेलुया। हमारा भरोसा अगर परमेश्वर को छोड़कर किसी भी बातों में है, हमको परमेश्वर दिखा देगा कि वो तेरे काम नहीं आया। हालेलुया। जो तू समझ रही थी भरोसा, वो काम नहीं आया। हालेलुया। और उनके कारण तू सफल ना होगी। आमेन। तो ये लोग आपको कितना ओपनली समझ में आना चाहिए। आप जब प्रेयर करेंगे परमेश्वर को, तो हाजिरा जब रोई तो स्वर्गदूत आ गया। आप जब असहाय अवस्था में है और आपको पता है कि आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप दुख हो रहा है आपको, तो आप परमेश्वर के सामने रो लीजिए, बोल दीजिए कुछ नहीं कर सकते हैं खुदा। बस वही काफ़ी है आपके लिए, स्वर्गदूत नीचे उतर कर आने के लिए। हालेलुया। और उस जगह में भविष्य आपका बनाने के लिए उसी समय इंतज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आप अपने अंदर से लोगों से फाइट मत कीजिए। आप अपने दुख देख सकते हैं, अपनी व्याकुलता देख सकते हैं, अपनी टूटी हुई अवस्थाओं को देखकर आपको मन टूटने जैसा आप हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ अकेले में बैठकर परमेश्वर के सामने आप रहो। हालेलुया। आप परमेश्वर को याद रखो कि वो ही एकमात्र है जिसको आप बता सकते हैं इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ खुदा, अगर कुछ है तो वो केवल तू कर सकता है। ओके, अगर किया तो ठीक है, नहीं किया इट्स ओके, लेकिन मेरे बारे में मुझे तो ये दुख से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे टाल नहीं सकती हूँ। हालेलुया। तो आप वैसा आगे जाना है, आप कोई असर आपके ऊपर नहीं रखना है कि आप जिम्मेदार नहीं बनना है किसी असर के लिए। ओके, आप आराम से ले लेना है, इट्स ओके लॉर्ड, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसके बारे में, इट्स ओके। ओके, और आप परमेश्वर के सम्मुख बने रहिए, शांत बने रहिए,
चुप हो जा और देख मैं तेरा परमेश्वर है, और जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। बहुत 99% बातें इतनी ज़्यादा है कि जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि हम दुख करें और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन उतने 99% का भी हताशा हम दुनिया के सामने नहीं करना है। बस खुदा के आगे बैठ के हम अपनी हताशा को व्यक्त कर सकते हैं। आमीन। और हम जानते हैं कि अगर खुदा ने कुछ नहीं किया तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम किसी के सामने अपने आंसुओं को नहीं गिराएंगे। हालेलुया। हम एकमात्र परमेश्वर की ओर देखेंगे, और जो होना है वही से होगा, नहीं होना है वी आर रेडी टू टेक द लॉस। आमीन। हम तैयार हैं नुकसान को लेने के लिए, लेकिन हताश किसी के सामने नहीं होंगे। आमीन। इतना दृढ़ विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखो कि परमेश्वर के अलावा कोई कुछ बदल नहीं सकता है। अगर नहीं बदला तो भी वो हमारा परमेश्वर है, अगर बदला तो भी वही हमारा परमेश्वर रहेगा। आमीन। तो इस प्रकार से आपका भरोसा और कहीं नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही आपका रिश्ता बने रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारी बातों से परमेश्वर का प्रेम और उसका भय हमें सिखाए। सच में महान परमेश्वर है हमारा। आमीन। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, जितना कुछ आज हमें तूने सिखाया है और इसके पहले सिखाया है, सब कुछ हमारे चित्त में रखना और हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल होते रहे। और कितना सुंदर प्यारा परमेश्वर है तू हमारा, ये हमारे जीवन में और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उजियाले से पिता रोशनी के साथ हम देखने पाए, ऐसा अनुभव हमारे जीवन में तू आज तैयार कर दे। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 6 चैप्टर 22 वर्स से 29 वर्स, 2 किंग्स 3 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 वचन से 29 वचन तक। दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय। हम 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान एकांत में अकेले में बैठकर पढ़ना है, व्यक्तिगत समय में पढ़ना है। जब हम व्यक्तिगत समय में इन वचनों को पढ़ रहे होंगे तो उस समय में परमेश्वर हमारे अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों की बातें करेगा, हमारा जीवन बदलता जाएगा। परमेश्वर के बहुत गंभीर अवस्थाओं को हम समझ पाएंगे। लाइफ चेंजिंग अवसर हमारे जीवन में हम खोल पाएंगे। हालेलुया। महानतम महान ऐसे अवसर हम हमारे जीवन में इनवाइट कर पाएंगे। हालेलुया। खोल पाएंगे। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, अनुग्रह का आत्मा दिया है। 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर हमें ऐसा बना हुआ प्राप्त करेगा जैसा वो हमें चाहता है इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा का हमने निश्चित ऐसा होने के लिए लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में हमारा जीवन हम दे देते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा, हमारे प्राण में उतर कर आ, हमारे शरीर में तू भर जा, हमारे द्वारा लोगों के जीवनों में तू उतर कर आ, हमारे सारे परिसर में अवस्थाओं में तू उतर कर आ। हमारे अंदर का हर वो रास्ता जो तुझे फ्लो होने नहीं देता है उसको डील कर पवित्र आत्मा, उसका सामना कर पवित्र आत्मा, उसके साथ विवाद कर पवित्र आत्मा, और हमें उन ढीठ अवस्थाओं में से आज़ाद कर जो तुझे हमारे प्राण और शरीर में से बहने नहीं देता है। हालेलुया। हमारी मदद कर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।